Good morning students, this is class 10th and today we are going to do some more question of exercise 5.3. Now we will start from question number 12. Question number 12 says find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. Okay, so we can write the required AP. There are various methods to write. You can also write given variables are a is equal to 6 and because of the series divisible by 6, so we can write d is also equal to 6 and the total number of terms 40. So by this values we can form AP. So AP is a plus d, a plus 2d dot dot dot. Okay, and you can also write the last term, that is a plus 39d. So 6 plus 6, 6 plus 2 6 and 6 plus 39 6. Okay, so required AP क्या हो जाएगा 6 12 18 डॉट 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 एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 39 एंड 6 240. ओके, लास्ट टर्म क्या हो गया 240. अगर आप यहाँ लास्ट टर्म नहीं निकालते तब भी ये हो सकता था. चलिए पता करते हैं. S40, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट the formula of summation n by 2 inside the bracket a plus l. अगर लास्ट टर्म हम नहीं निकालते तो यहाँ a plus l नहीं लिखते, यहाँ पर 2a वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. सो S40 is equal to 40 by 2 inside the bracket 6 plus 240. Now 20 multiply by 2 46. So your result become 12 9 and 4. Okay, 4920. And the next question is question number 13. Question number 13 says find the sum of first 15 multiples of 8. Do you know what is the meaning of multiples? It is nothing but just a table. It means you need to write the table of 8 in 15 times. Okay, so similarly we can also write this question, means first term is 8 and the common difference is also 8 and the total number of terms 15. So now we need to find, so therefore we will first of all we will write the required AP. So first term A, second term A plus D, third term A plus 2D and 15 term A plus 14D. So what is A? 8, 8 plus 8, 8 plus 2, 8 dot 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 8 plus 14, 8. Okay, so your required AP is 8, 16, 24 dot 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 and 14 8 112 and 8 120. Okay, now we can find the sum of first 15 term of this AP. So S15 is equal to n by 2 or Sn is equal to n by 2 A plus L. So S15 is equal to 15 by 2. What is A and 120. L is 120. Last term क्या है 120. So 15 by 2 multiply by 128. So 15 multiply by 64. So you can multiply it. 15 4 ja 60, carry 6 and 6 ja 90. So 96. So your required answer is 960. Okay.
Now the next question is question number 14. Question number 14 says find the sum of odd numbers between 0 and 50. Okay, so हमारा रिक्वायर्ड AP किसके बीच में है भाई? हमारा रिक्वायर्ड AP है 0 से बड़ा और 50 से छोटा, क्योंकि 0 और 50 हमारे ऑड नंबर नहीं है। अब इसके बीच में जो है AP हम कंसिडर करेंगे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे? सो रिक्वायर्ड AP 1, 3, 5 डॉट 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 एंड लास्ट वन इज 49. Okay, find the sum of odd numbers between. So first of all we will find the number of terms, because we don't know about the number of terms but we know about the first term and the last term. Okay, so here we can write a is equal to 1, d is equal to 3 minus 1, it means 2. So how can we find the number of terms? It is easy. So number of terms is equal to last term minus first term upon में d plus 1. Okay, मीन्स जनरल फार्मूला को हम लोगों ने n के टर्म में लिख देना है। सो लास्ट टर्म इज 49 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1. सो हियर 48 बाई 2 प्लस 1. सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 प्लस 1. हाउ मेनी टर्म्स? 25 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स आर 25. नाउ वी कैन फाइंड द सम. So S25 is equal to 25 upon में 2. It means you can write here Sn is equal to n by 2 a plus l. Okay, so S25 is equal to 25 by 2, a is 1 and l is 49. So 25 by 2 into 50, it means 25 into 25 give us 625. Okay, so the sum of odd numbers between 0 and 50 is 625. I hope you understood. Now the next question is question number 15. Question number 15 says a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for first day, 250 for second, 300 for third. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. Okay, it means 50 क्या होगा? 50 आपका common difference होगा. How many or how much money the contractor has to pay as a penalty? कितना पैसा जो है कॉन्ट्रैक्टर को फाइन के रूप में भरना पड़ेगा if he delay the work by 30 days, अगर वो काम को 30 दिन देर से करता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ डेज, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू 30. ओके, एंड द फर्स्ट टर्म हैज़ गिवन a इज इक्वल टू 200 and the common difference is also given rupees 50. Okay, so now we can write the required AP. तो AP हम कैसे लिख सकते हैं? AP को लिखने का आसान तरीका, आप नंबर ऑफ टर्म्स a प्लस डी a प्लस 2d, पहले के 3 टर्म लिख लीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म पता है तो लास्ट का टर्म लिख लीजिए, डॉट 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 a प्लस 29d, यानी जितने भी टर्म होंगे उससे एक वैल्यू यहाँ पर कम होगी। ओके, सो 200 प्लस 50 200 प्लस 250 200 plus 29 50. Okay, so our required AP is 200 250 300 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका 29 और 50 से आप 900 95 जा 45 200 and 25 जा 10 0541. ओके, एंड 200 आप इसमें ऐड कर देंगे तो 1650. सो 1650. ओके, तो लास्ट टर्म भी हम लोगों को पता चल गया। मैं लास्ट टर्म इसलिए निकाल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। ओके, अदरवाइज़ आप चाहें तो जनरल फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे
Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। बट लास्ट टर्म अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है तो आप लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो ये AP हो गया। अब हम यहाँ सम निकाल लेते हैं, टोटल पेनाल्टी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। सो S30 डेज का, या सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ओके, सो S30 इज इक्वल टू 30 बाई 2 200 plus 1650। okay, so 15 multiply by 1850, so now rupees 1500, 75 को 5 carry 7 and 15 8 जा 120, 120 and 7 127 carry 12 and 15 1 जा 15 and 12 27। ओके, तो रुपीज़ 15 एंड 12 आई थिंक 27, सो रुपीज़ 27,750 एज ए पेनाल्टी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। ओके, सो यू कैन राइट वन स्टेटमेंट हियर, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, या कॉन्ट्रैक्टर विल पे रुपीज़ 27,750 एज पेनाल्टी। ओके, सो इस तरीके से आप स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ रुपीज़ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट, यानी 700 रुपये को 7 बच्चों में बांटा जा रहा है एज ए प्राइज फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is ₹20 less than its preceding prize, अगर हर प्राइज़ अपने पिछले प्राइस से 20 रुपये कम हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज़। ओके, तो इसमें जो जो चीज़ें दी हैं उसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट 7, एंड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ प्रीडीज क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात आ रही, कम आ रही है तो -20, और फर्स्ट टर्म हमको मालूम नहीं है तो हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी A। ओके, एंड द सम ऑफ रुपीज़ इज़ रुपीज़ 700। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, अगर हम ए पता कर लेते हैं तो हम लोग काफ़ी इजीली पता कर सकते हैं। चलिए करते हैं। सो रिक्वायर्ड AP क्या होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, 7 टर्म्स है तो वी कैन राइट A प्लस 6D। ओके, सो A है ही है अपनी जगह, A प्लस -20, A प्लस 2 -20, A plus 6 -20. So we can write A minus 20, A minus 40, ... Here we can write A minus 120. ओके, तो ये हमारे जो है कि टर्म्स हैं A minus 20, 120. Okay, now how can we find the number of A? So we can write here, as we know, Sn is equal to n by 2 inside the bracket A plus L. Okay, so what is Sn? Sn has given 700 and the number of terms 7 by 2 and the value A is A and L is A minus 120. तो आप क्या करेंगे, 7 by 2 को इधर भेज देंगे और ये कितना हो जाएगा, 2A minus 120 is equal to 7 multiply by 2 upon में 7. So 2A is equal to, ये हो जाएगा 200, 7 1 जा 7, तो 100 टाइम में 700 जाएगा तो 100 2 जा 200, और ये माइनस से प्लस 120. सो A is equal to 320 upon में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12.
तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा 60, यानी पहला प्राइस हमारा क्या हो गया 60 रुपीज़ 60। तो फर्स्ट प्राइस क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है कि फर्स्ट प्राइस होगा, तो फर्स्ट प्राइस ए है यानी रुपीज़ 160, एंड सेकेंड टर्म हमारा ए प्लस डी होगा यानी 20 रुपीज़ डिक्रीज़ करेगा, सो 160 प्लस माइनस 20, सो रुपीज़ 140। तो इसी तरीके से आप सातों प्राइस निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी इजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज इन अ स्कूल, एक विद्यालय में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री, बच्चे जो है पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, स्कूल के अंदर और चारों तरफ हवा प्रदूषण को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट इस सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट, यह निर्णय किया गया कि हर सेक्शन जो है कि कुछ पौधे लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास। ओके, जैसे जितना जो क्लास है उतने ही पौधे लगाएगा, जैसे क्लास 1 एक पौधा लगाएगा, क्लास 2 2 पौधा लगाएगा, क्लास 3 3 पौधा लगाएगा। लेकिन उसमें देखते हैं आगे क्या है, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, क्लास 2 इज प्लांट 2 ट्री, क्लास 12 एज सो ऑन। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ओके, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फॉर्म AP। तो व्हाट विल बी डू हियर, तो हम लोग लिख लेंगे क्लास 1 प्लांट हाउ मेनी, देयर आर 3 सेक्शन इन क्लास 1। ओके, सो class 1 plant the tree is equal to number of section into number of plant. Okay, number of section into number of plant we can write here. So how many section are there in each class, 3 into plant 1, so 3 we can write 3. Okay, class 2 plant the tree is equal to 3 multiplied by 2 6. Class 3 plant the tree is equal to 3 multiplied by 3 9, as so class 12 plant the number of trees is equal to 3 multiplied by 12 36। तो हमें रिक्वायर्ड AP मिल गया। सो हमारा AP क्या होगा 3, 6, 9, 36। ओके, तो यहाँ हमको क्या क्या मालूम है, A मालूम है 3, D मालूम है 6 minus 3 is equal to 3। ओके, एंड नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है 12 क्लास एंड 12 क्लासेस, एंड लास्ट टर्म भी मालूम है 36। सो हियर वी कैन यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L। ओके, सो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 3 प्लस 36, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 39, so 6 9 ja 54, carry 5, 18 and 5 23, so 234 trees will be planted by the whole students. Okay, so this is our answer. I hope you understood. So rest of the question you will try to do. Okay, thank you for watching.